we see 18% of the total population suffer from infertility. Really affects mental, physical and emotional. Men are equally responsible for having infertility in the family. जिन लोगों की irregular periods आते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी उनको पता ही नहीं 25 डेज में आ जाएंगे, कभी 35 डेज में आएंगे, तो कैसे ट्रैक करेंगे? Lifestyle is the most important thing which is in our hands. We'll waste their 6 months and maybe after 6 months they come, हमारे तो fertility और डाउन हो गई. So there is a couple who is trying for 2 years. 2 साल से they are trying to get pregnant to enhance their family. So each month starts with a hope, but it ends with hopelessness. And I guess nowadays this is not so uncommon. कुछ लोग शेयर कर पाते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं. So in this series of podcasts, we are trying to bring up some things that I guess आप किसी से शायद डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट सबके मन में कोई ना कोई सवाल है. So we will not just discuss the how, the why and the when, but we will discuss अब क्या करें एंड क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या हम अपनी फैमिली नहीं बढ़ा पाएंगे. So we have somebody with us, the privilege of having a very renowned fertility specialist, Dr. Beena Muktesh, who is the clinical director, motherhood and Silverleaf Clinics. So we have the privilege who has not helped just people to achieve pregnancy, but with her science, compassion and honesty, helping the common masses for more than 30 years now. So ma'am, thank you so much for being with us and welcome to the show. Thank you, Vatsala. Thank you very much for the nice introduction. Our pleasure, ma'am. So ma'am, like this couple, I guess we come across बहुत सारे लोग ऐसे जो आप शायद बड़े शहरों में फिर भी लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, छोटे में नहीं कर पाते. क्या वही लोग हैं जो ये सफ़र कर रहे हैं? How is common is infertility? See, infertility is rising nowadays. I don't know what the reason is. We will elaborate the reasons also. Maybe those are the reason. But now if we see 18% of the total population suffer from infertility. And you know, there are almost 1/4 of the people who are really struggling to get pregnant. They might get pregnant in some time, but the struggle is there with them. So now you can imagine how big is the problem of infertility nowadays. So I think we need to address this issue very seriously, because you know it really affects mental, physical and emotional, economical aspect of people. Very true, ma'am. Very true. So this is, people should see that ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है. This is quite common now. So ma'am, coming to the next question, that it is just a female issue और husband wife दोनों कारण हो सकते हैं infertility का? नहीं वत्सला, केवल फीमेल्स को नहीं कह सकते कि ओनली फीमेल्स के कारण है. मेल्स का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है. अगर हम देखें तो 25% of the population who are infertile or having on the path of infertility are females, 25% are males and 20% are unexplained. So you can imagine 10% are both common and couple of them are who just don't know why they are not getting. You can put them in unexplained also. So men are equally responsible for having infertility in the family. Okay. So it is not just that कि सारा दोष फीमेल का है, not to call it as दोष. पहले होता था, पहले जब भी कभी बहुत समय पहले जब हम देखते थे कि अगर कोई कपल इनफर्टाइल होता था तो फैमिली मेल्स की दूसरी शादी कराने की कोशिश करती थी कि ये तो फीमेल बांझ है, इस फीमेल को तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही. पर अगर देखा जाए तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मेल पार्टनर का भी होता है. अगर उनके स्पर्म्स ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? तो इसीलिए हमें जब भी देखना है तो हमें दोनों पार्टनर्स को देखना चाहिए. Okay. So ma'am, what are the causes of
क्या कारण है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के? देखिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो जिसमें मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस में फीमेल्स। अगर हम मेल्स को ले लें, किसी के नील शुक्राणु हैं, मान लो उनके स्पर्म्स ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कहाँ से बनाएंगे। कभी कभी उनके शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होती है, उनकी स्पर्म्स की काउंट बहुत कम होती है, कभी कभी मोटिलिटी बहुत कम होती है, कभी कभी इतने ज़्यादा एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं कि वो प्रेगनेंसी नहीं बना सकते, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी और बहुत सारी मेल्स में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, बनते नहीं हैं स्पर्म। तो मेल्स का अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है जिसमें, और उसके अलावा कभी टेस्टीज़ में इन्फेक्शन हो जाए तभी स्पर्म्स नहीं आते, कभी अनडिसेंडेड टेस्टीज़ है जो बर्थ के टाइम डिसेंड हो जाती है, वो नहीं हो पाती तो भी मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो मेल्स में को स्पर्म्स नहीं बनते या इतने कम मात्रा में बनते हैं कि पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कम आते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो सीमन टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें बताता है कि क्या ये मेल इनफर्टाइल है या ये सफ़र कर रहा है इनफर्टिलिटी से कपल या नहीं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कि सीमेन एनालिसिस। जी बिल्कुल। अगर हम मेल को, अच्छा फीमेल का भी हम कवर करेंगे, बट अगर मेल को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस की इम्पोर्टेंस केवल सीमेन टेस्ट करा लिया ठीक है ऐसे नहीं होता। सीमेन एनालिसिस शुड बी डन इन अ गुड लेबोरेटरी, फर्टिलिटी यूनिट लेबोरेटरी, क्योंकि वहाँ पर सीमेन को 200 टाइम्स मैग्नीफाई करके हाई माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके कारण एबनॉर्मलिटी ज़्यादा पता लगती है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमने तो इस लैब में कराया, उस लैब में कराया, हमारा तो 40% नॉर्मल है और इधर हमने IVF लैब में कराया तो 2% नॉर्मल है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। वी शुड अंडरस्टैंड कि वो जो उन्होंने टेस्ट कराया है वो लो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देख लिया तो सारी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं पकड़ में आती, और यही अगर वो एक हाई क्वालिटी की लैब में कराएंगे या किसी फर्टिलिटी यूनिट में कराएंगे, स्लाइड को स्टेन करके करेंगे तो उसमें एबनॉर्मलिटी ज़्यादा पता लगेगी। कई बार कल्चर नहीं करते तो इन्फेक्शन का नहीं पता लगता, कल्चर भी उतना इम्पॉर्टेंट है, सीमन में कल्चर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही सीमन टेस्ट कराना चाहिए। अब अगर हम फीमेल की बात लें, 3 तरह से प्रेगनेंसी होती है। ओवरीज के कारण एग्स निकलते हैं, ट्यूब्स के कारण जिससे कि वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है एग, और स्पर्म के कारण इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो यूट्रस के कारण। अगर हम एक एक करके उसका थोड़ा इलेबोरेट करें तो ओवरीज में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़, बहुत कम ओवेरियन रिजर्व। जैसे एज बढ़ती है ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो जाता है, किसी किसी का तो यंगर एज में भी ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जाता है। ओवेरियन रिजर्व, ओवरीज की प्रॉब्लम जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, कोई बड़ी सिस्ट हो गई, कोई डर्मोइड सिस्ट बहुत बड़ी हो गई जिसके कारण दोनों तरफ की ओवरीज इन्वॉल्व हैं, या इतना ज़्यादा और ओवरीज की हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ओवरी हो गया। अब ट्यूब, अगर सपोज ट्यूब्स हमें ब्लॉक मिलती है या ट्यूब्स में पार्शियल ब्लॉकेज है तो एग वहाँ से ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी कैसे हो सकेगी। तीसरी चीज़ें हैं ओव्यूलेशन। अच्छा, ओवरी का अगर हम देखें कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता, हार्मोन्स के कारण होता है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो ओवरी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, उनका FSH, LH, E2 सब अफेक्ट होगा और वो ओव्यूलेशन नहीं हो सकेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ट्यूब हमने कवर किया। अब देखिए यूट्रस, अगर यूट्रस में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, एंडोमेट्राइटिस है, कोई बड़ा पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई कैपेसिटी कम है, उसके बीच में सेप्टम है, पार्शियल सेप्टम है, कंप्लीट सेप्टम है, जिसके कारण हो सकता है वो प्रेगनेंसी ना करे, या थिन एंडोमेट्रियम होता है जिसमें इम्प्लांट ही नहीं हो सकता। फाइब्रॉइड पूरे यूट्रस को ऑक्यूपाई करके कैविटी को ऑक्यूपाई करता है तो कहाँ पे इम्प्लांट होगा। एडिनोमायोसिस होते हैं, बड़े बड़े एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के बाद में एडिनोमायोसिस भी हो जाता है, इस कारण से भी होता है। कभी यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी होती है, मान लो यूनिकॉर्नेट यूट्रस और दूसरा यूट्रस बहुत छोटा है, कभी कभी उसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं होती, या यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी में एक तरफ का ट्यूब ही नहीं है या दोनों तरफ का ट्यूब ही नहीं है तो उसमें प्रेगनेंसी तो हो भी नहीं सकती। यूट्राइन छोटा इन्फेंटाइल यूट्रस है, छोटा सा यूट्रस है, वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकता, बर्थ से ही ऐसा है। तो इस तरह से ओवरीज, ट्यूब्स,
और यूट्राइन प्रॉब्लम के कारण इनफर्टिलिटी होती है। सीमन हमने देख ही लिया कि सीमन में अगर स्पर्म नहीं आ रहे, मोटिलिटी बहुत कम है, काउंट बहुत कम है, पॉइंट्स में है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो इन चारों पांचों कारण के कारण में इनफर्टिलिटी होती है। हार्मोनल प्रॉब्लम दोनों को अफेक्ट करती है। बहुत थायराइड बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, एफएसएच लेवल बिगड़े हुए हैं, प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई है, मेल फीमेल दोनों में अगर हार्मोन बिग, टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स में अगर बहुत कम है तो ऑब्वियसली उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इन सब बातों का, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक, कोई कोई ऐसी होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो ओव्यूलेट नहीं करती, तो उनको इनफर्टिलिटी होती है। कुछ ओव्यूलेट करने वाली होती हैं, पॉलीसिस्टिक ठीक है, वो ओव्यूलेट करती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन कभी कभी एनोव्यूलेटरी भी होती है, सिवियर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो, मेल्स में ओबेसिटी हो, फीमेल्स में बहुत ओबेसिटी हो, तो कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं होती। बहुत सारे रीज़न है, अगर हम एलैबोरेट करेंगे तो आई थिंक घंटों लग जाएंगे, बट मेनली मोटे मोटे तरीके से ये सब कारण होते हैं जिसके कि pregnancy- ऐसा नहीं है कि मतलब एक मेल और फीमेल हैज टू बी इवैल्यूएटेड Definitely, वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ इट। सो मैम, इफ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। हर मंथ एक एग ओवरी से रिलीज होता है, ट्यूब का फिम्ब्रिल एंड उसको पकड़ लेता है और इस एग को ट्यूब में ट्रैवल करके सेंटर ऑफ द ट्यूब में ले आता है। जब हस्बैंड के साथ इंटरेक्शन होता है तो स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं और ट्यूब के थ्रू सेंटर ऑफ द यहाँ पे ले आते हैं और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। इस ट्यूब में फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रैवल करके वापस यूट्रस में आता है और यूट्रस की लाइनिंग पे इम्प्लांट हो जाता है और यहीं बढ़ने लग जाता है। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी यूट्रस में ही बढ़ती है और जब समय आता है तब नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी करके बेबी को निकाला जा सकता है। यही तरीका है नॉर्मल कंसेप्शन होने का। ओके, सो मैम ये आपने बहुत डायग्रामेटिकली हमें सिंपल ईजी उसमें बताया कि हाउ प्रेगनेंसी हैपन्स। सो मैम, इज देयर अ राइट टाइम कि कोई विंडो पीरियड है दैट व्हेन अ कपल शुड ट्राई, कि उस टाइम पर वो ट्राई करें, साइकिल का, मंथ्स का, फॉर अ मेल और अ फीमेल स्पेसिफिकली? बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो एग रिलीज होता है नेक्स्ट साइकिल के 14th डे इज कांस्टेंट। उस टाइम पे अगर किसी की साइकिल 35 डेज़ की है, वहाँ से आप 14 डेज़ माइनस करेंगे तो उसका ओव्यूलेशन 21 डेज़ पे होगा। किसी की साइकिल मान लीजिए 28 डेज़ की है तो अगली साइकिल से 14 डेज़ माइनस करेंगे तो उसका ओव्यूलेशन 14 डेज़ पे होगा। किसी की साइकिल 25 डेज़ की है, वहाँ से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो 11th डे पे उसका ओव्यूलेशन। बट ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी का ओव्यूलेशन उस टाइम पे, अगर ऐसा सबका ओव्यूलेशन होता तो हर इंसान अपना ट्रैक करके और प्रेगनेंसी कर लेता। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ओव्यूलेशन का टाइम डिफ़र कर जाता। जिन लोगों की इरेगुलर पीरियड्स आते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी उनको पता ही नहीं 25 डेज़ में आ जाएंगे, कभी 35 डेज़ में आएंगे, तो वो कैसे ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग करने का और अच्छा तरीका है किसी फर्टिलिटी यूनिट में जा कर के अपना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराया जाए। ओके, अगर वो 9th डे 10th डे ऑफ पीरियड से फॉलिकल को ट्रैक करना शुरू करेंगे, ऑप्टिमम साइज कब बना देखेंगे, कब रिलीज़ हुआ, फ्लूइड भी दिखाई देगा, एग्स भी डिसअपियर होता, फॉलिकल भी डिसअपियर होता दिखाई देगा और मालूम पड़ेगा कि अब ओव्यूलेशन हो गया। अगर वो उस विंडो को यूज़ करें तो इट विल बी बेटर रादर देन जस्ट सस्पेक्टिंग कि 14 डेज़ फ्रॉम नेक्स्ट, या ओव्यूलेशन किट्स भी कई लोग यूज़ करते हैं। ओव्यूलेशन किट्स में भी बहुत अपरेंटली या बहुत सॉलिड तरीके से हमें नहीं पता लगता। एक तो वो रिपीटेडली करना पड़ता है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है, कभी कभी कंटिन्यूस लाइन दिखाई दे जाती है, कभी कभी ओव्यूलेशन हो जाता है तो कंटिन्यूस लाइन भी नहीं दिखती। तो वो इतना सॉलिड रीज़न नहीं है कि उसको ट्रैक करके हम ओव्यूलेशन, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो अपने ओव्यूलेशन ट्रैक करते हुए आते हैं और जब हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता लगता है तो ओव्यूलेशन तो हुआ ही नहीं, उसमें दिख गई किट कितनी पुरानी है, ठीक तरीके से किया या नहीं किया, सेम टाइम पे किया नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ओके मैम, सो यू तो आर बेस्ट तरीका अगर आपको पता लगाना है तो दैट शुड बी ए अल्ट्रासाउंड इन अ फर्टिलिटी यूनिट। इफ़ यू वांट टू कंसीव नेचुरली यू मस्ट गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड ऑन 9th और 10th डे ऑफ पीरियड एंड ट्रैक दैट फॉलिकल कि वो रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा।
So ma'am, you are trying to say कि ठीक है पुराने अब 21st century हो गया है तो थोड़ा सा technology to be used in this yes, also. yes. You know, that will shorten your fertility. That will shorten your duration of conception. अगर आपको पता है कि exactly किस दिन आपका ovulation हुआ तो आप उसको use कर सकते हैं. अगर आप suspect करोगे कि अच्छा 14 days अभी तो जल्दी आ गए, अभी तो late हो गया, या ovulation kit तो बिल्कुल लाइन पे लाइन दिखा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा, या लाइन से नहीं आ रही, तो ये confusion रहता है. इसलिए better है, you must go to an infertility unit and get the ovulation tracking done, follicular tracking done. That is the best way to find out कब आपका ovulation हुआ. And ma'am, being in the world इतना result oriented है सब कुछ, so I guess this reduces the anxiety also. Definitely, definitely. आप खुद देखते हो अल्ट्रासाउंड में कि अच्छे हाँ फॉलिकल बन रहा है, अब रप्चर हो गया, आपको एग्जैक्ट टाइम भी पता लगता है. जब फ्लूइड दिखाई देगा तो अभी इमीडिएट रप्चर हुआ है या थोड़ा ही टाइम हुआ है, स्टिल देयर इज 24 आवर्स, so you can use that period. And this is natural only, ma'am. Naturally, this if you want to. is not something हाँ. that But we must हम कुछ कर रहे हैं. absolutely, and you know we must find out कि जब भी हम ovulation track कर रहे हैं, natural sperm should be good. अगर आप ओव्यूलेशन तो ट्रैक कर रहे हो, 3 बार ओव्यूलेशन हो, 4 बार, पता लगा स्पर्म में ना मोटिलिटी है, ना मॉर्फोलॉजी है, ना काउंट है, ऐसा स्पर्म कैसे जाके ओव्यूलेशन के टाइम जो एग है उससे मिल पाएगा. तो अगर आपका फर्टिलिटी अच्छी है, ट्यूब्स पेटेंट है, आपके स्पर्म ठीक हैं, देन यू कैन ट्रैक द फॉलिकल एंड यूज दैट पीरियड. Exactly, ma'am. True. So, ma'am, you told us that there can be male reasons or female reasons for an infertility. Then you told us egg is needed and sperm is needed. कि pregnancy कैसे हो, एक अंडा चाहिए और एक शुक्राणु चाहिए. Coming to next. और उसका बेड भी चाहिए, यूट्रस. Okay. कि एक उसका घर भी चाहिए कि जहाँ पे वो पर इम्प्लांट हो सके. implant हो. Correct, ma'am. So, ma'am, coming to our next question कि apart from this, क्या एज इफेक्ट करता है ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए एज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. आप देखेंगे कि आजकल जो हम देख रहे हैं, डे एंड नाइट पेशेंट देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में उनके एग्स कम हो जाते हैं, ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो जाता है, एएमएच इतना लो हो जाता है, पता नहीं लगता इतना कम कैसे. किसी 30 इयर्स 32 इयर्स एएमएच 0.1 0.2 0.3. सरप्राइजिंग. आई डोंट नो व्हाई देयर एएमएच गो सो लो. उनकी फर्टिलिटी इतनी डाउन क्यों हो जाती है? तो एज का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. 34 इयर्स पहुंचते ही सडनली लाइक ए स्नोबॉल फर्टिलिटी गोज़ डाउन, एग्स एकदम कम हो जाते हैं. अगर आपको, मैं बार बार ये चीज़ हर अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फर्टिलिटी डाउन हो रही है, अगर आपकी एज बढ़ रही है, आपको कोई पार्टनर नहीं मिला, यू मस्ट फ्रीज योर एग्स टू प्रिजर्व योर फर्टिलिटी. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी तरह से अगर हम मेल्स का देखें तो पहले कहते थे कि मेल्स की एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो मेल्स की एज से बहुत फ़र्क पड़ता है. एक तो उनकी सीमन में एबनॉर्मल स्पर्म्स आने लग जाते हैं, मॉर्फोलॉजी उनकी बहुत ख़त्म हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, तो उनकी फर्टिलिटी भी जैसे जैसे एज बढ़ती है कम होती जाती है. Okay. So, ma'am, it's not just females, males की age also matters. And what you said, जैसे egg freezing कर सकते हैं या embryos freeze कर सकते हैं, both ways जो society pressure है that comes down and indirectly you are saved from Yes. taking. इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपकी एज 34 ईयर्स से कम है, you are not able to conceive for 1 year and you are trying, you are staying with your husband under all good conditions, and for 1 year you have not tried and not conceived, you must go and visit a fertility specialist. But if your age is more than 34 35 years, if you have not conceived for 6 months, you must go to a fertility specialist. Ma'am, you already answered my next question. Yeah. That when to visit a specialist. Yeah, I just So, told yeah. कि according to age you must visit. Second thing is कि हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि हमारे को कोई डायग्नोस्ड प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर डायग्नोज कोई प्रॉब्लम पहले से ही मालूम है तो और जल्दी आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके पता लगाना पड़ेगा कि हमारी फर्टिलिटी कितना टाइम और चलेगी, कैसे हम कंसीव करें, हम अभी करने के लायक नहीं हैं, अभी हम नहीं करना चाहते. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. Okay. So, ma'am, diving into the next thing, continuing our podcast ahead, it's getting very interesting, ma'am, already, and we have lots of questions. So, ma'am, what are the factors
that are affecting male female fertility, one, and continuing with it, you touched that topic briefly, that हम कैसे पता लगाएं कि fertility कैसी है? बिल्कुल, किसी को देखकर पता लगा सकते एब्सोल्युटली हैं? नहीं, देखकर किसी की फर्टिलिटी नहीं पता लगा सकते हैं उस मसला। बट आई विल टेल यू, देखो जैसे हम एक हेल्थ चेक कराते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, वी गो फॉर हेल्थ चेक्स। Correct. एवरी कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड एवरीवेयर दे जस्ट आस्क एवरीवन टू गो फॉर एन हेल्थ चेक। Correct. व्हाई? अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। इसी तरह से आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी फीमेल टू गो फॉर अ फर्टिलिटी चेक। Now, what is fertility check if they are unmarried and their age is even 26, 27, 28 years? If they go for fertility check, they will know that what is the status of their ovaries, what is the status of their pelvis, even if they don't have sperm, even if they are not married. If they are unmarried, they can at least do an AMH test, which is very important to tell about the fertility, and an ultrasound to know everything is okay. Once you know that you have sufficient bank balance, you are not worried. But in case if you know that your fertility is low, you can take active action, no? That is for unmarried. So I would suggest to go for fertility check. Everybody whosoever has reached the age of fertility, maybe 25, 26, they must go for, whether they're planning now or not planning, trying to, have pregnancy or not having, trying to get married or not having, still they should know. Once they know, they have a knowledge, they will not repent. I wish somebody would have told you. But अगर किसी ने नहीं बताया तो ये हमारी गलती है, because we as a doctor we must tell everyone कि आप अपना fertility check करें। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, चाहे आपको अभी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी चेक कराने से आपको पता तो लगेगा। ऐसे इतने पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका हम फर्टिलिटी चेक करते हैं, और जब उनके ओवेरियन रिजर्व या उनकी स्पर्म की क्वालिटी देखते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू वेट, वी वांट अ चाइल्ड, अभी से हमें इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, वी डोंट वांट टू वेट, बिकॉज दे नो अगर वो वेट करेंगे तो उनकी फर्टिलिटी और डाउन हो जाएगी, एज के साथ तो और कम होती जाती है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके फिर हम और तरीके बताते हैं, वी माइट टेल यू इन अनदर पॉडकास्ट कि व्हाट शुड वी डू इफ द फर्टिलिटी इज लो, व्हाट ऑल रीजंस आर देयर, वी विल हैव व्हेन वी कवर आवर ओवेरियन रिजर्व। Okay, so you people have to stay tuned with us and wait for the next series as well, next episode of our podcast. And to I deep think you dive. asked me what are the factors which affect Exactly. fertility. The most important factor is lifestyle. Okay, ma'am. Lifestyle, what does lifestyle contains? That is, healthy eating, exercises, proper sleep, no smoking, no alcohol, no late nights. All these things come in lifestyle. We may try to cover all these topics separately, but lifestyle is the most important thing which is in our hands. If genetically there is a problem, sperm quality is problem, egg quality is problem, tubes are blocked, endometrium is thin, maybe that's not in our hands. We have to treat them. But improving the lifestyle is in our hands. Meditation, having a healthy lifestyle, good living, all these come into healthy lifestyle. Okay. So if that is improved, weight loss, yoga, gym, exercise, all this. So if that is improved, at least we can say that fertility may be maintained. It is not going to down. But lot of smoking and alcohol and stress, late night leads to sudden drop in fertility. ओके, सो मैम आप यही जो लाइफस्टाइल जो सबसे जल्दी हम इग्नोर करते हैं एंड वी टेक इट वेरी लाइटली कि इससे तो क्या होता होगा, एंड व्हेन द पेशेंट्स कम टू अस एंड दे थिंक कि डॉक्टर सब कोई गोली लिख देंगे एंड थिंग्स विल बी फाइन, सो यू आर सेइंग लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट थिंग। एंड वो ही सबसे डिफिकल्ट है लोगों को फॉलो करना। ईटिंग out is a habit nowadays. Nobody wants to have a home cooked food. Home cook कौन खाता है आजकल, बहुत difficult है. True. Late nights
it's not their fault. Sometimes they have office work, they have to international, they have got offices at international levels, and they have to be awake till 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. When they get up, they're not fresh. Lot of disturbance in the morning, so we can't help them. But still, whatever level we can do, we should do. At least eat healthy, at least do some exercises after you sleep. Okay, so at least reducing watching TV and all. That all can be done, which is in our hands. Correct. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको. Okay. So, after we have touched these topics, ma'am, you told us about age, you told us about weight, you told us about stress levels. So, if a patient is walking in आपके OPD में, आप daily hundreds of देखते हैं कि कोई patient है, जैसे हमने initial introduction में बात किया कि जो couple 2 साल से try कर रहा है. So, ma'am, जब वो आपके पास आएं और किसी भी fertility specialist के पास जाएं, तो what would be your approach? देखिए, सबसे पहले तो हम उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेना चाहेंगे. डिटेल्ड हिस्ट्री विल टेल अस एनीथिंग रॉन्ग इन देयर फैमिली, any genetic problem, do they have diabetes, do they have hypertension, is anybody in the family suffering, did they have any past surgery, anything which affects their fertility, what is their lifestyle, they smoke heavily, what is their job, this is a detailed history we take, so we get some clue what must be the reason for there. Then we go for test. There are some important tests which we do for females. There are some important tests which we do for males. For females, we generally do complete blood count, blood sugar, viral markers, VDRL, HIV, Australian antigen, and hepatitis. Then we do prolactin levels. On the second day of period, we do their hormones. We do thyroid, and to see whether they have got rubella immunity or not. So we do rubella test and HPLC for sickle cell. These are very important tests which we do for all females who come to us for fertility. We get some clue what could be the reason. Then when it goes to the male, most important test is semen analysis from a good laboratory where high magnification is done and it is said. So we do that test semen analysis. If anything comes like infection, we do culture also. If we find that the semen analysis is poor, then we go for DNA fragmentation also. If they are not having any sperm, we check them physically. We ask andrologists to check physically. वो physically check करते हैं कोई epididymitis तो नहीं है, कोई hydrocele तो नहीं है, या किसी तरह का testis undescended, तो वो physically check करते हैं. Males के लिए फिर hormones check करते हैं, लेकिन hormones check तब करते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ही poor quality का sperm है या नहीं आ रहा, तब हम hormone. Basic test तो हम एक semen analysis, culture, और अगर बहुत पुअर क्वालिटी या ओलिगोटेरिटोसिस पर में आता है, जिसे हम कहते हैं कि काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी कम है और सब कुछ कम है, तो उनके DFI भी करते हैं, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स. वो हमें बताता है कि कितने स्पर्म्स है जो फ्रेगमेंट हो चुके हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं बना सकते. अगर वो हाई है तो प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है, अगर वो लो है तो स्टिल लाइफस्टाइल वगैरह बेटर करने से थोड़ा अच्छा हो जाता है. ओके मैम. सो यू टोल्ड अस मैम कि व्हाट a patient should expect from you, कि patient एक fertility specialist के पास गया तो वो क्या expect करे. Now ma'am, from a fertility specialist angle, आप क्या expect करते हैं कि एक patient आए तो what mental state the patient should be in, what documents कुछ लेकर आने हैं. देखिए, patient जब हमारे पास में आते हैं तो we want to ask what do they want. If they say that हम प्रेगनेंसी अभी करना चाहते हैं तो हम उस लाइन में चले जाते हैं. अगर वो कहते हैं कि हम अभी तो नहीं करना चाहते लेकिन हमें डर है हमारी फर्टिलिटी कम ना हो जाए, तो हम दूसरी लाइन पकड़ते हैं. इफ़ दे आर अनमैरिड तो और हमें लगता है कि उनका AMH लो हो जाएगा एंड दे स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया वेदर दे विल गेट अ पार्टनर और नॉट, तो वी एडवाइज देम टू फ्रीज देयर एग सो दैट लेटर ऑन व्हेन दे डोंट कंसीव नेचुरली दे कैन यूज़ देम. तो ये हम करते हैं. और अगर हमारे पास में मेल्स आते हैं तो हम मेल्स का तो डेफिनेटली सीमन एनालिसिस कर करके देखते हैं. तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन पार्ट. पहले कंप्लीट हिस्ट्री लिया,
फिर इन्वेस्टिगेशन, वी डाइव इनटू देयर लाइफस्टाइल आल्सो, वी टेल देम टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल। अगर हमें लगता है कि उनकी फर्टिलिटी अभी मेंटेन्ड है, वी एडवाइज देम फॉर योगा, मेडिटेशन एंड गुड डाइट। ओव्यूलेशन के लिए हम बोलते हैं कि ट्रैकिंग करिए, अगर नेचुरली हो जाता है तो गुड, अगर नहीं तो हम थोड़ा स्टिमुलेशन देते हैं उसको। स्टिमुलेशन देके हम चाहते हैं कि ओव्यूलेशन हो, और उस ओव्यूलेशन में डिपेंडिंग ऑन सीमन रिपोर्ट, या तो ओव्यूलेशन के टाइम हम उनको नेचुरली कंसीव करने के लिए बोलते हैं, हैव एन इंटरकोर्स फॉर 24 आवर्स, देयर विंडो पीरियड इज देयर, और वी डू IUI फॉर देम। अगर सीमन क्वालिटी थोड़ी पुअर नज़र आती है तो हम उनको बोलते हैं IUI करना आपके लिए बेटर होगा, जिससे हम सीमन को वॉश कर सकें। बट जब हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे आता है जिनकी ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर है, ओव्यूलेशन हो नहीं रहा, नंबर ऑफ एग्स बहुत कम है, ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, तो हम डायरेक्टली IVF के लिए भी बोलते हैं, बिकॉज एवरी सिंगल डे विल बी काउंटेड एज वेस्टेड इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड। अगर उनके इतनी पुअर क्वालिटी है और अगर हम उनको बोले आप IUI करो, नेचुरली ट्रैक करो, फॉलिकुलर ट्रैकिंग करो, विच विल वेस्ट देयर 6 months एंड मे बी आफ्टर 6 months दे कम, हमारे तो फर्टिलिटी और डाउन हो गई। तो हमें भी जज करना पड़ता है कि क्या हम इनको विंडो पीरियड दे सकते हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल बेटर करें, अपना करें, सारे टेस्ट हमने कर लिए, सब नॉर्मल है, कम इनटू अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, क्या हम अपने को थोड़ा टाइम दें जिससे वो नेचुरल कंसीव कर सके, या इट इज़ एन अर्जेंसी टू डू समथिंग एक्टिव फॉर देम बिफोर दे लूज देयर फर्टिलिटी, वो हम असेस करते हैं। IUI कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो IVF भी करना पड़े तो कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का आफ्टर दिस IVF एंड IUI, laparoscopic surgery for ovarian things are only advised if there's a big huge cyst compressing, otherwise हम even endometriosis की भी अगर छोटे छोटे cyst है, we don't advise them to go for laparoscopy। ट्यूब टेस्ट हम करके देखते हैं, जो हम हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी और से भी करके देख लेते हैं। We generally do not do diagnostic laparoscopies and hysteroscopy until unless we find some finding in ultrasound। अगर हमें अल्ट्रासाउंड लगता है कोई पॉलिप है तो हम डेफिनेटली हिस्टोस्कोपी करके निकालना चाहेंगे। अगर हमें लगता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ से। इफ दे आर कॉर्नियल ब्लॉक, हम अंडर एनेस्थीसिया HSG करके देखते हैं। कभी कभी स्पैज्म से कॉर्नियल ब्लॉक आता है पर होती नहीं है ट्यूब ब्लॉक। अगर अंडर एनेस्थीसिया में भी ट्यूब्स बंद मिली तो very rarely, I personally don't do, we try to open by hysteroscopy, but otherwise we advise them to do an IVF। Now one more important thing कि हम IVF कब करें। People think it is a last resort, कुछ भी नहीं होगा हमारे से, सब करके देख ले तभी हम IVF ऐसा नहीं होता। जब IVF करना चाहिए ऑप्टिमम टाइम पे, जब आपके ओवरीज में एग्स हों, आपको इनफर्टिलिटी हो, कोई इशू हो, तभी आपको IVF करना चाहिए, जिससे आपके अच्छे एग्स मिले हमें। करेक्ट। तो मैम ऐसा नहीं है कि IVF का आप वेट ही करते रहें कि यू नहीं, ये भी दैट ऑल विल डिपेंड कि हम कितना टाइम IVF करने के लिए, क्या हम 2 IUI कर सकते हैं तो हम IUI करेंगे, 3 IUI कर सकते हैं हम IUI। नेचुरल के लिए टाइम है हमारे पास, नेचुरल भी देंगे। पॉलिसिस्टिक ओवरीज है तो मेडिसिन से कोशिश करेंगे उनका ओव्यूलेशन होने लग जाए। स्पर्म में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन देते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करते हैं, हाइपरटेंशन तो उसको कंट्रोल करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम निकल गई तो उसको कंट्रोल करते हैं। इस तरह से सारे पैराफर्नीलियाज को देख के हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनकी फर्टिलिटी जब तक मेंटेन्ड हो, नेचुरल वे से IUI से हो जाए। बट अगर हमें लगता है उनकी फर्टिलिटी बिल्कुल डाउन हो रही है, देन वी डोंट वेट फॉर सच लॉन्ग। सो राइट नॉलेज इज द थिंग। दैट्स एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर हम रादर देन आप अपने आप से डिसाइड करो, मतलब यू शुड गो एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, दैन उससे बेटर कि आप वो गोल्डन टाइम लूज कर एब्सोल्युटली। दो। आजकल तो हर इंसान अपनी रिपोर्ट जानता है। They will get the report, they themselves will know if their fertility is low, sperm quality is low, they should take an active step rather कि हम मान लो सपोज लेडी के एग्स ठीक है और स्पर्म के में प्रॉब्लम है और उसको 2 साल लग गए स्पर्म को ठीक करने में, 1 ईयर लग गया, पता लगा कि वो तो स्पर्म थोड़ा ठीक हो गया लेकिन फर्टिलिटी गॉन डाउन। तो ये ना दोनों को एज ए कपल को देखा जाता है, एक यूनिट को देखा जाता है, दोनों की बैलेंस करके देखना पड़ता है। ये तो नहीं कि एक को ठीक कर रहे हैं दूसरे की फर्टिलिटी डाउन जा रही है।
सो मैम नाउ जो बहुत कॉमन सा जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल है कि दे आर अभी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं कर चाहिए, सो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कॉन्ट्रासेप्शन कब यूज़ करना, कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई इंजेक्शंस ले रहे हैं, कोई बैरियर मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो डज इट अफेक्ट फर्टिलिटी कॉन्ट्रासेप्शन? देखिए, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन से यूज़ करने से तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन पिल ले रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब वो छोड़ते हैं, दे वांट टू, तो इट टेक्स लिटिल टाइम, 3 months से 6 months लग जाते हैं टू ब्रिंग बैक द फर्टिलिटी. बट इफ दे हैव टेकन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट डज अफेक्ट फर्टिलिटी इफ टेकन अ very long time, because then the hormones get suppressed, and then it becomes difficult to bring them up again. Stimulating them, it will need a higher dose. They have to wait for some more time, so ovarian reserve also might go down. But if they just take it for some time, give a gap, use barrier contraception, that time again they can use, so I think then there shouldn't be any problem. Of course, they have to wait for conceiving at least 3 months to 4 months after they have stopped using oral contraceptives. तो इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. Okay, ma'am. So, ma'am, we have tried to ask from you whatever knowledge हम लोग ले पाएं, and for our public also that sub topics understanding basically the fertility and infertility. बिल्कुल. So, in between you said about आपने follicular monitoring बोला, IUI यूज़ किया, ovulation inductions, तो I guess ma'am we'll ask your privilege to be with us again. बिल्कुल, definitely, because ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि before IVF what all can be tried, what is the right age to do IUI, ovulation induction and natural conception, what are the precautions we are going to cover that completely, because many people have this question, हम कितने IUI करें, हम क्या ovulation induction करें, तो हम उसको एक डिटेल में बना के everybody we will expect them to learn from our experience कि कब क्या करना चाहिए. Correct, ma'am. Ma'am, thank you so much for being with us and sharing everything इतना simple language में जो अभी again I say कि हम absorb करेंगे पहले and I hope कि कुछ लोगों को कुछ आंसर्स मिले होंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कुछ लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुआ होगा कि शायद मुझे उठकर एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना. नॉलेज तो काफ़ी लोगों को होती है, बट एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है. लिसनिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, इट बिकम्स रीइंफोर्स्ड इन देयर माइंड कि यस व्हाट वी वर रीडिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. बिल्कुल. और जब पढ़ते हैं हम गूगल्स में तो इतना वास्ट होता है कि हमें पता नहीं लगता कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम. राइट, एब्सोल्युटली. एंड यू रियली asked very nice question which is generally in mind of many people and they want solution for this. Ma'am, thank you so much for being with us. Thank you, Vatsala. Thanks a lot. And signing off for our today's episode with this note that knowledge is strength. तो हम लोग we are trying to provide you with the knowledge, and as ma'am always says कि decision आपका होगा, knowledge हम देंगे. So you remember that. Thank you, Vatsala. Thanks a lot. So tune in, like, share and subscribe. Namaste.